ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ, ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ, ਈਵਨ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 3 ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ 2 ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੇਬਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਜ਼ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਫੇਜ਼ ਸਪੇਸ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਜ਼ ਸਪੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਜ਼ ਸਪੇਸ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੇਸ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੇਸ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਪੇਸ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਪੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਦੀ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ in which जो state of constituent of particles in which state of constituent of particle, just a second, constituent particles of system can be described in terms of position coordinate, in terms of position ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰੂਗਾ, 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਨੂੰ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, n ਕੀ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 3n ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ। 3n ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਜੋ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਪੇਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਪੇਸ ਦੀ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੇਸ ਇਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਪੇਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਕੌਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਪੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, n ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ,
एन की अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने, दैन वी नीड टू अगर मोमेंटम अपने कोआर्डीनेट्स ਨੂੰ डिस्क्राइब करना है तो पोजीशन स्पेस की तरह जो मोमेंटम स्पेस होगा वो भी की होगा 3 डायमेंशनल होएगा। की होएगा अपने को 3 डायमेंशनल होएगा। ठीक है जी। तो इस दे विच भी अगर आप गल करिए 3n की आ जाऊगा मोमेंटम स्पेस आ जाएगा। क्लियर। तो इसलिए आप कह सकते हैं अगर अपने को 3 की है अपने को XYZ पोजीशन कोआर्डीनेट्स हैं XYZ एंड मोमेंटम कोआर्डीनेट्स की होंगे PX, जस्ट अ सेकेंड, PX PY PZ। PZ ठीक है जी। ये अपने कोल की होंगे 3 मोमेंटम कोआर्डीनेट्स होंगे PX PY PZ मोमेंटम कोआर्डीनेट्स हैं, XYZ अपने कोल की ने पोजीशन कोआर्डीनेट्स हैं। ठीक है जी। हुण इन्हां दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नूं मिला के मतलब पोजीशन वाले नूं भी मिला के मोमेंटम वाले नूं भी मिला के अपने कोल की तैयार हो जाऊगा फेज स्पेस तैयार हो जाऊगा। की तैयार हो जाऊगा फेज स्पेस। क्लीयर। तो फेज स्पेस दे विच अपने कोल की आ जांदा जदों आपां ने पोजीशन कोआर्डीनेट्स नूं भी डिस्क्राइब कीता होवे ते मोमेंटम नूं भी। तो जो अपने कोल फेज स्पेस हुंदा है ये अपने कोल की हुंदा 6 डिमेंशन हुंदा। की हुंदा 6 डिमेंशन, क्योंकि अगर n पार्टिकल्स ने अपने कोल n की ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो फेज स्पेस दे विच किन्नी तरह नाल उन्हां नूं डिस्क्राइब किया जाऊगा 6n कोआर्डीनेट्स बन जाएंगे। किन्ने कोआर्डीनेट्स बनणगे 6n, जिस दे विचों अगर आप गल करिए 3 की ने अपने कोल 3n अपने कोल किस दे ने पोजीशन स्पेस दे एंड 3n अपने कोल किस दे ने मोमेंटम स्पेस दी। तो टोटल अपने कोल किन्ने कोआर्डीनेट्स बन जाएंगे 6n कोआर्डीनेट्स बन जाएंगे। क्लीयर। ठीक है जी। तो हुण अगर आप गल करिए वॉल्यूम दी, अपने कोल वॉल्यूम किस तरह नाल अवेलेबल होएगा तो कंसीडर कर लेना अपने कोल एलीमेंट्री क्यूबिकल पार्ट है तो उसका अगर वॉल्यूम होएगा तो उसके पहले स्पेस की साइज की होंगे डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। तो वॉल्यूम कितना होगा पोजीशन स्पेस का डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। ये सिर्फ आपने किस दी गल की है पोजीशन स्पेस ते वॉल्यूम दी। क्लीयर। ये चीज़ ध्यान दे विच रखनी है। हुण अगर मैं गल करा ये तो अपने कोल पोजीशन स्पेस दी सी, अगर मैं मोमेंटम स्पेस की गल करा कोई भी एलीमेंट्री पार्टिकल है क्यूबिकल का जिस दे विच आपां मोमेंटम स्पेस देखांगे तो वो किस तरह नाल बाउंड होगा मोमेंटम स्पेस डेल्टा PX डेल्टा PY डेल्टा PZ। क्लीयर। तो आप इसका वॉल्यूम किस तरह लिखांगे वॉल्यूम इज इक्वल टू या वॉल्यूम नो डेल्टा टो ना लिख सकते आप डेल्टा टो इज इक्वल टू डेल्टा PX डेल्टा PY डेल्टा PZ। क्लीयर। एक इसका हो गया अपने को जो मोमेंटम स्पेस है। तब प्रोडक्ट करांगे आपने अगर पूरी लिखना है, देखो हुण दोनों का फेस स्पेस का लिखना है। फेस स्पेस का लिखण दे लई आपां प्रोडक्ट करांगे किसदा पोजीशन स्पेस का डेल्टा V एंड मोमेंटम स्पेस का डेल्टा टो दोनों तो अपने कोल की आ जूगी डेल्टा टो की वैल्यू आ जूगी। ये है कि अपने कोल जो आप फेस स्पेस की गल कर रहे हैं तो इस दे विच डेल्टा वॉल्यूम की वैल्यू सी डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z डेल्टा टो की वैल्यू की सी डेल्टा PX डेल्टा PY डेल्टा PZ। क्लीयर। यह की हो गया अपने को वॉल्यूम ऑफ द एलीमेंट्री फेस स्पेस। की हो गया वॉल्यूम ऑफ एलीमेंट्री स्पेस। इसनों होर किस तरह ना लिख सकते हो H0 दी क्यूब किस तरह ना रिप्रेजेंट कर सकते हो H0 दी क्यूब दे नाल रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगे डिमेंशनस देखते हैं। डिमेंशन ऑफ H0 की होंगे अपने को लेंथ इंटू मोमेंटम लेंथ इंटू मोमेंटम। हुण देखो इसनों की लिख सकते हैं लेंथ नूं मैं की कर सकते हैं टाइम नाल डिवाइड करता टाइम नाल की करता मल्टीप्लाई। मोमेंटम नूं मैं की लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी यही हुंदा अपने कोल। ठीक है जी। तो लेंथ इंटू टाइम की अगर मैं गल करा अपने कोल की बन गया वेलोसिटी बन गया। आप कह दें चेंज इन डिसप्लेसमेंट विद रिस्पैक्ट टू टाइम की हुंदा वेलोसिटी। वेलोसिटी
बन गया इंटू टाइम टी इंटू एम इंटू वी। एम अपने कोल मास है, वी अपने कोल वेलोसिटी है। तो की बन गया इन्हां तो की तैयार हो गया अपने कोल मास इंटू वेलोसिटी दा स्केयर इंटू की आ गया अपने कोल टाइम टी। क्लीयर। तो हुण इन्हां दी यूनिट्स पुट कर दो, की लैंदे आपां मास दी की हुंदी है किलोग्राम, वेलोसिटी दी की हुंदी है मीटर स्केयर आ जूगी, नाल की आ जूगी सैकेंड स्केयर, मीटर स्केयर पर सैकेंड स्केयर, टाइम की किन्नी हुंदी अपने कोल सैकेंड। तो अपने कोल की बन जूगा देखो हुण ये अपने कोल किस दे बराबर है जूल दे, जूल सैकेंड नाल आ जूगा की बन गया जूल सैकेंड। तो अपने कोल एच नोट दी की यूनिट बन गई जूल सैकेंड। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान दे विच रखियो कि एच नोट दी अपने कोल की यूनिट है जूल सैकेंड। ठीक है जी, क्लीयर होया। कई बार डायरैक्ट क्वेश्चन बन जाता है SI यूनिट दसो तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैं तुहानू ये भी चीज़ आपने विद डेरीवेशन कर ली। नैक्सट आप गल करांगे डिवीजनस ऑफ सैल, डिवीजनस ऑफ सैल्स। सैल्स की किस तरह नाल डिवीजन की जाती है। देखो जिन्ने भी पार्टिकल ने फॉर डायनामिक नेचर की गल करांगे, डायनामिक सिस्टम की होंदा जो कि है चेंज होंदा रहे, वेरी करता रहे। डायनामिक सिस्टम की अगर मैं गल करा तो जिन्ने भी अगर आप गल करिए पार्टिकल्स ने, ऑल पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स की पोजैस करते हैं। अगर आप गल करिए पोजैसिंग गिवन मोमेंटम, गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो तुसी। ठीक है जी, मतलब एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो, या आप कह दिए मोमेंटम की डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो। ठीक है जी, तो ऑल द पार्टिकल पोजेसिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ, अ गिवन अमाउंट ऑफ given amount of energy at a particular constant are consigned to a particular cell। पर्टिकुलर कॉन्सटेंट कंसाइंड होगा मतलब वो नाल लिंक होगा किस लिए, जो अपना पर्टिकुलर सैल होगा, टू पर्टिकुलर सैल दे लई, हर पर्टिकुलर सैल दे लई, पर्टिकुलर सैल मैं इत्थे लिखता इस तरह नाल। क्लीयर है जी। तो इसका मतलब की होया कि हर अपने कोल जो एनर्जी होएगी उहदे लई की होगा अपने कोल एक पर्टिकुलर सैल होगा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। इत्थे तो गल कीती सी एनर्जी दी, सिमिलरली आप गल करांगे मोमेंटम दी। मोमेंटम लई भी अपने कोल पर्टिकुलर सैल होएगा, मोमेंटम दे लई भी अपने कोल की होगा पर्टिकुलर सैल होएगा। सिमिलरली वन सैल होगा, वन सैल भी लिख सकते, पर्टिकुलर सैल का मतलब क्या वन सैल होगा। ठीक है जी, क्लीयर होया। नैक्सट आप गल करांगे ऑक्यूपेशन इंडेक्स की। अगर कोई डाउट होवे ना, कोई चीज़ ना क्लीयर होवे तो तुसीं मैनूं कमेंट च दस दिया करो, आप नैक्सट लैक्चर च वो दोबारा कर लिया करांगे, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। क्योंकि कई बार ना टॉपिक क्लीयर होने दे विच टाइम लग जाता है, तो दस दिया करो। ऑक्यूपेशन इंडेक्स की हुंदा है, देखो ऑक्यूपेशन इंडेक्स का मतलब की हुंदा है रेशो हुंदी है, की हुंदी है रेशो हुंदी है जिहदे विच अगर आप गल करिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स NI, ऑक्यूपेशन इंडेक्स NI/GI हुंदा है। NI की अपने कोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ते GI अपने कोल की है जो अपने कोल नंबर ऑफ सैल्स हैं। क्लीयर। तो हरेक कंपार्टमेंट जो फेस स्पेस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ डिफरेंट ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
जिन्ना दे अगे आपां गल करिए डिफरेंट की हुंदे ने, जो अलग अलग की है नेचर दे हुंदे ने, अलग अलग नेचर हुंदा है। तो जो एन आई अपने कोल की ने, एन आई की ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने जो डिवाइड किए जाते हैं नंबर ऑफ सैल्स दे विच अलग अलग दे विच, इस तों आपां की कह दिंदे आ ऑक्यूपेशन इंडेक्स। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मैं डेफिनेशन लिखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सैल, एक सैल दे विच किन्ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसनों आपां की कह दिंदे आ ऑक्यूपेशन इंडेक्स कह दिंदे आ। क्लीयर है जी? क्लीयर। नैक्सट आपां गल करांगे, नैक्सट गल करांगे स्टैटिस्टिक्स दी। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ, ਜਾਂ ਨॉन ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟਮ। देखो जो अपने कोल क्लासीकल है इस दे विच की आ जाता है, अपने कोल इस दे विच आ जाती है MB मैक्सवैल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। तो जो अपने कोल क्वांटम है इस दे विच अगे फिर दो डिवीजन्स आ जाती है। फर्स्ट वन अगर मैं गल करा बोस आइनस्टाइन स्टैटिस्टिक्स BE लिख दिनी है, एंड इस दे विच की आ जाती है सैकेंड आ जाती है फर्मी डायरेक्ट, फर्मी डायरेक्ट। इस तरह नाल की होंदी है दो टाइप्स दे विच की है स्टैटिस्टिक्स नूं डिवाइड किया जाता है। क्लासीकल नूं जो मैक्सवैल बोल्ट्जमैन दे जो थ्योरम्स ने डिस्ट्रीब्यूशन ने उस दे विच डिवाइड है। सैकेंड क्वांटम दो टाइप्स दे विच डिवाइड है, बोस आइनस्टाइन, ये अपने कोल B है, जस्ट अ सेकेंड, बोस आइनस्टाइन कंडेंसेशन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। देखो इस दे विच अगर आप गल करिए इन्हों डिटेल दे विच डिस्कस करांगे, तो अगर आप गल करिए सब तो पहला इन्हों दे विच ना थोड़े थोड़े मैं तुहानूं डिफरेंस दस दिंदी हाँ, फिर डिटेल दे विच करांगे। सब तो पहला आप लाइन नाल समझ रहे हैं, इधर की है मैक्सवैल बोल्ट्जमैन, नैक्सट की है बोस आइनस्टाइन, नैक्सट अपने कोल की है फर्मी डायरेक्ट। ठीक है जी। तो इन्हों का पहला डिफरेंस देखिए थोड़ा जहा, तो जो अपने कोल मैक्सवैल वाला होगा मैक्सवैल बोल्ट्जमैन, ये जो पार्टिकल होंगे वो डिसटिंगेशेबल होंगे, मतलब उन्होंने अलग किया जा सकता है, ABC अलग अलग होंगे। क्लीयर। जो बोस आइनस्टाइन वाले होंगे ये जो पार्टिकल होंगे इनडिसटिंगेशेबल होंगे, इन्हों अलग नहीं किया जा सकता, मतलब सारे A वाले होंगे। तो फर्मी डायरेक्ट दे विच भी इनडिसटिंगेशेबल क्योंकि है तो ये क्वांटम दे विच आ गए ना, तो इन्हों की जो प्रॉपर्टीज़ ने मोस्टली सेम होंगे, एक अद्धी अलग होगी। ठीक है जी। तो सैकेंड पॉइंट की अगर मैं गल करा, सैकेंड की है इन्हों का जो साइज़ होगा फेज स्पेस सैल का वो उन्ना होगा साइज़ ऑफ फेज स्पेस साइज़ ऑफ जो फेज स्पेस सैल है इस दे विच अगर आप गल करिए सॉरी उन्ना ही चाहिए, कैन बी एज स्मॉल एज रिक्वायर्ड, कैन बी एज स्मॉल एज रिक्वायर्ड, मतलब जिन्ना छोटा होना चाहिए उन्ना होएगा। क्लीयर। साइज़ जो फेस स्पेस सैल का कैन बी स्मॉल, जिन उन्ना ही स्मॉल होगा जिन्ना आपां नूं चाहिए। ठीक है जी। क्लीयर होया। यही गल अगर बोस आइनस्टाइन दे विच देखी जाए तो इन्हां दे विच की सी, इन्हां दा जो साइज़ होगा फेस स्पेस सैल का वो कैन नॉट लैस दैन H क्यूब। H क्यूब की है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, H क्यूब तो लैस नहीं होगा, कैन नॉट लैस, शॉर्ट च लिख दिनी है कैन नॉट लैस, इन्ना तो छोटा, तुसी कॉपी ते ना अपना प्रॉपर वे दे विच लिख लियो। तो फर्मी डायरेक्ट दे विच भी अगर आप गल करिए साइज़ कैन नॉट लैस दैन H क्यूब, क्योंकि इन्ना दे तो मोस्टली जो पॉइंट्स ने वो की होणगे सेम होणगे, H क्यूब तो घट होणगे। ठीक है जी, घट नहीं हो सकते, साइज़ कैन नॉट लैस दैन H क्यूब, कैन नॉट लैस दैन H क्यूब। H क्यूब की है हुण अपने कोल जो अपना कॉन्स्टेंट है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट उसनों लिया गया।
ठीक है जी। तो थर्ड अगर आप गल करिए इज ए थर्ड पॉइंट की, थर्ड की अपने को जो नंबर ऑफ सैल्स ने, हुणे आपां की कीता सी ऑक्यूपेशन इंडैक्स कीता सी ना, तो उस दे बेस ते ही थर्ड अपने को देखिए की है नंबर ऑफ सैल्स, जो अपने को नंबर ऑफ सैल्स ने NI/GI मैक्सवैल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स दे विच ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 1 ਤੇ। ठीक है जी, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ GI ਲੈਸ ਦੈਨ NI। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਫਰਮੀ ਡਾਇਰਕ, थर्ड अपने कोल की सी फर्मी डायरक। इस दे विच की सी जो नंबर ऑफ सैल्स ने हैज़ टू बी ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੇ GI ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ NI/GI ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੋੜ ਦੂੰਗੀ, ਸਭ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਵਾਤੀ ਕਿ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਓ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਜੋ PTET ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।